میں آپ کو بتائیں، ہر طرف سموگ شہریوں کے لیے نیا روگ۔ شہر میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں لاہور کا پہلا نمبر برقرار۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 403 تک پہنچ گیا۔ کینٹ کے علاقے میں فضائی آلودگی کی شرح 500 ریکارڈ، عامر ٹاؤن کا AQI 437 اور مال روڈ کا 421 ریکارڈ کیا گیا۔ شہریوں کو آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں مزید دشواری کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سامیہ سعید سے۔ سامیہ، آگاہ کیجیے گا۔ سامیہ، اگر ہم ہمیں سن پا رہی ہیں تو آگاہ کیجیے گا اس بارے۔ سامیہ سے بھی مزید بات کریں گے تو آپ کو بتائیں کہ ہر طرف سموگ شہریوں کے لیے یہ نیا روگ بن گیا ہے۔ شہر میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں لاہور کا پہلا نمبر برقرار۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 403 تک پہنچ گیا ہے۔ کینٹ کے علاقے میں فضائی آلودگی کی شرح 500 ریکارڈ، عامر ٹاؤن کا AQI 437 اور مال روڈ کا 421 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں سامیہ سعید سے۔ سامیہ، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، شہر میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور آج ایک بار پھر سے فضائی آلودگی کی فہرست میں سر فہرست ہی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 403 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بات کر لی جائے شہر کے مختلف علاقوں کی تو وہاں بھی صورتحال جو ہے وہ کچھ ایسی ہی دکھائی دے رہی ہے۔ عامر ٹاؤن کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 437 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ کینٹ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 500 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ مال روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 421 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ نہ صرف لاہور میں، لاہور کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں بھی ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ انتظامیہ فضائی آلودگی کی روک تھام کے لیے مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ فضائی آلودگی میں جیسے دن پر دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کے باعث جو بیماریاں ہیں وہ بھی جنم لینا شروع ہو گئی ہے۔ شہر میں آنکھوں میں جلن، سانس میں دشواری جیسی بیماریاں جو ہے وہ بالکل عام ہو چکی ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے جو ہے وہ اقدام کیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اسموگ ایمرجنسی کا جو نفاذ ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ آج سے لے کر 1 ماہ تک تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں طلبہ و طالبات کے لیے ماسک پہننا جو ہے وہ لازمی قرار دے دی ہے۔ صوبائی وزراء کو آج سرکاری و نجی اسکولوں کے وزٹ کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے اور عوام سے بھی اپیل کی جا رہی ہے کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلے تو ماسک کا استعمال کریں۔ گھروں کی تعمیر کے دوران مٹی، ریت اور بلبے پر جو ہے وہ چھڑکاؤ نہ کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ سخت کارروائی کی جائے گی۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کاشتکار جو فصلوں کی باقیات نہ چلائے بلکہ ان کو مناسب طریقے سے طلب کیا جائے۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور فیکٹریوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ اور محسن نقوی کی زیر صدارت جو ہے وہ ایک اجلاس منعقد کیا گیا تھا کل، لیکن اس میں جو یہی فیصلہ کیا کہ چھٹی کرنا یا دکانیں بند کرنا جو ہے وہ حل نہیں ہے۔ شہریوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرے تاکہ جو ہے وہ فضائی آلودگی کی روک تھام ہو سکے۔ دوسری جانب اگر بات کر لی جائے موسم کے حوالے سے تو آج شہر کا کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا آج امکان ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 82% ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ہوا کی رفتار جو ہے وہ 0 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے اور آج بھی لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں جو ہے وہ سر فہرست ہی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کا یہی کہنا ہے کہ شہر میں اگلے 24 گھنٹوں تک بارش برسنے کے کوئی امکانات نہیں ہے، تو شہریوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے سامیہ، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ عبدالقادر نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ عبدالقادر، آپ بتائیے گا اسموگ پر قابو پانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ بالکل، اسموگ پر قابو پانے کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے جو ہے پری اسموگ جو ہے وہ کارروائیوں کا آغاز کیا گیا، ایک مہم کا آغاز کیا گیا، لیکن وہ بے سود ہوتی دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ اب اسموگ کو جو ہے باقاعدہ طور پر آفت قرار دے دیا گیا اور اس جو صورتحال کے باعث پنجاب حکومت کی جانب سے جو ہے پنجاب بھر کے تمام نجی اور سرکاری اسکولوں میں ماسک کو لازمی قرار دیا گیا تاکہ اسموگ جو کہ فضائی آلودگی کا جو امیزش ہے اس کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹس یا طلبہ جو ہیں ان کو جو ہے بچانے کے لیے تاکہ وہ متاثر نہ ہوں تو ماسک کا استعمال لازمی قرار دیا گیا۔ اور اس وقت صوبائی دارالحکومت لاہور کے تمام اسکولوں میں اگر بات کی جائے تو ماسک پر جو ہے 100% جو ہے وہ عمل درآمد ہوتا دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ مؤثر جو ہے وہ آگاہی مہم نہ ہونے کی وجہ سے بیشتر طلبہ جو ہیں ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے
کہ انہیں علم ہی نہیں تھا کہ آج جو ہے ماسک جو ہے وہ پہن کے آنا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے جو بعض اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کل سے جو ہے وہ ماسک پہن کے آئیں گے، لیکن جو صورتحال اس وقت یہ ہے کہ لاہور کی جو فضائی آلودگی ہے وہ خطرناک حد تک بڑھ چکی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف لوگوں کو سانس لینے میں دشواری ہے بلکہ جو آنکھوں میں چبھن ہے وہ بھی جو ہے باقاعدہ طور پر اب محسوس ہونے لگی ہے، جس کے بعد پنجاب حکومت کی جانب سے اب جو اسکول کے طلباء ہیں ان کے لیے ماسک کو لازمی قرار عبدالقادر، دیا یہ بھی گیا، کہا ساتھ ساتھ کیجیے گا اسکول کے اسٹاف جیسے کہ کل کے اجلاس میں ماسک کو پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے، اور یہ بھی ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ تمام صوبائی جو وزراء ہیں وہ نجی اور سرکاری اسکولوں کے وزٹ بھی کریں گے، تو اس متعلق بھی کہا کیجیے گا۔ آج بالکل اس وقت تو میں باغبان پورہ جو ہے گورنمنٹ ہائی اسکول کے باہر موجود ہوں، جہاں پر بیشتر طلباء کی جانب سے ماسک نہیں لگائے گئے، اور اسی ماسک کو یقینی بنانے کے لیے جو ہے پنجاب کے جو صوبائی وزراء ہیں ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ مختلف اسکولز کا وزٹ کریں اور وہاں پر جو طلباء ان میں اسموک آگاہی اور اسموک کے متعلق جو ہے شعور کو اجاگر کریں، اور اس حوالے سے جو شہر کے بیشتر سرکاری اسکول ہیں وہاں پر جو طلباء ہیں ان کی جانب سے ماسک کو یقینی نہیں بنایا گیا، متعدد طلباء کی جانب سے بنایا جو ہے وہ ماسک پہنا گیا، لیکن ان کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ماسک کی اویلیبلٹی بھی اس وقت جو ہے وہ جو ہے ایک سوالیہ نشان بنی ہے، کیونکہ کرونا کے بعد جو ہے جو سڑک کنارے جو ماسک فروخت کرنے والے تھے وہ اب نظر نہیں آ رہے، جس کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایک بہانہ یہ بھی مل گیا ہے کہ ماسک جو ہے وہ مل نہیں رہا۔ لیکن اس وقت کی صورتحال پر بات کی جائے تو اسکول کے اوقات کار کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے، تمام نجی اور سرکاری اسکولوں میں اسٹوڈنٹس کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، لیکن ماسک جو ہے وہ 100% جو ہے اسٹوڈنٹ کی جانب سے جو ہے وہ پہنا ہوا نہیں دکھائی دے رہا، جبکہ اسکول انتظامیہ کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ کل رات ہی تمام اسٹوڈنٹس کو جو ہے مختلف گروپس میں اور میسیج کے ذریعے جو ہے وہ آگاہ کر دیا تھا کہ آج صبح اسکول جو ہے وہ ماسک کے بغیر نہ آئے، کیونکہ ماسک کو یقینی طور پر جو ہے وہ پہننا لازمی قرار دیا گیا، لیکن ابھی کی آج پہلا دن ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے گزشتہ روز جو ہے اس کا اعلان کیا گیا تھا کہ تمام اسکولوں میں جو ہے ماسک کو لازمی قرار دیا گیا، اور متعدد اسٹوڈنٹ سے جب ہماری بات ہوئی کہ ماسک کیوں نہیں پہن کے آئے تو ان کی جانب سے ٹھیک ہے، ہمارے دونوں نمائندگان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سامیہ بہت شکریہ آپ کا، عبدالقادر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تو آپ کو بتائیں پنجاب بھر میں انسداد اسموک کے لیے اسموک ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، 1 ماہ کے لیے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں طلباء کے لیے ماسک لازمی قرار دے دیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کہتے ہیں کہ عوام سے بھی اپیل ہے کہ وہ ماسک کا استعمال کریں۔ لیاقت علی کی رپورٹ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس پنجاب بھر میں اسموک ایمرجنسی نافذ، وزیر اعلیٰ نے منظوری دے دی۔ 1 ماہ کے لیے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں طلباء کے لیے ماسک لازمی قرار دے دیا گیا۔ نگران صوبائی وزراء کو جمعرات سے سرکاری اور نجی اسکولوں کے وزٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ صوبائی وزراء ماسک کی پابندی کو چیک کریں گے۔ اجلاس میں اسکولوں میں چھٹی اور ٹرانسپورٹ بند کرنے کی تجویز سے اتفاق نہیں کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب میں نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ عوام سے بھی اپیل ہے کہ وہ ماسک کا استعمال کریں۔ گھروں کی تعمیر کے دوران ملبے پر چھڑکاؤ نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اسموک کے دوران کاشتکاروں کے خلاف چالان واپس لینے کا حکم بھی دے دیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ کاشتکار بھائی فصلوں کی باقیات نہ جلائیں بلکہ انہیں مناسب طریقے سے تلف کیا جائے۔ اجلاس میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور فیکٹریوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رکھنے کا فیصلہ۔ اجلاس میں ماہرین ماحولیات اور ماہرین صحت نے اسموک میں کمی اور اسموک کے اثرات سے بچاؤ کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے بارے میں بریفنگ دی۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے شہر بھر میں فوری اسموک ایمرجنسی نافذ کرنے کے لیے پی ڈی ایم اے کو ہدایات جاری کر دیں۔ جسٹس شاہد کریم نے قرار دیا کہ اسموک میرا نہیں، یہ ہم سب کے بچوں کا مسئلہ ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ کالا دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں کو سیل کر کے ڈی سیل نہ کیا جائے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک سے متعلق درخواستیں، جسٹس شاہد کریم نے درخواستوں پر سماعت کی۔ کمشنر لاہور محمد علی رنداوا، ڈائریکٹر لیگل عبدالرزاق اور محکمہ ماحولیات سمیت دیگر افسران عدالت پیش ہوئے۔ جسٹس شاہد کریم نے اسموک میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا۔ فاضل جج نے کمشنر لاہور سے کہا، آپ اس شہر کے مالک ہیں، آپ نے شہر کی کیا حالت کر دی ہے، آپ کو شہر کی صورتحال دیکھ کر شرمندگی ہونی چاہیے۔ اسموک لاہور ہی نہیں بلکہ پورے پنجاب میں ہے۔ عدالت نے انڈر پاسز کی مرمت کا کام دن کے وقت کرنے سے روک دیا۔ انڈر پاسز کی مرمت کا کام رات 12 بجے
के बाद शुरू करने का हुक्म। कमिश्नर लाहौर ने अदालत को बताया कि अंडरपासेस की खराब हालत लाहौर की खूबसूरती पर असरअंदाज हो रही थी, इसलिए मुरम्मत का काम शुरू करवाया गया। अदालत ने कमिश्नर लाहौर को स्मोक इमरजेंसी डिक्लेयर करने का हुक्म दे दिया। आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को ताहुक्म सानी सरबमोहर करने का हुक्म। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को भी बंद किया जाएगा। अदालत ने कहा कि कमिश्नर साहब, आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि तालीमी इदारों की असेंबलियों में बच्चों को इस बारे आगाह करें। बच्चे जहां चिमनियों से धुआं निकलता देखें तो हेल्पलाइन पर कॉल करें। इस हवाले से एक हेल्पलाइन बनाएं। अदालत ने केस की समाअत 3 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। स्मोक ने लाहौर समेत पंजाब भर को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। सूबे में स्मोक को आफत करार देते हुए स्मोक के तदारुक के लिए फौरी इकदामात करने की हिदायत कर दी गई हैं। मजीद देखते हैं ये रिपोर्ट। PDMA ने पंजाब में स्मोक को आफत ज़दा करार दे दिया। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को रिलीफ कमिश्नर के इख्तियारात सौंप दिए गए। PDMA की जानिब से सूबे भर की इंतजामिया को लेटर जारी। स्मोक का बाइस बनने वाले हर इकदाम को रोकने की हिदायत। फसलों की बाकियात को आग लगाने पर पाबंदी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूलों में स्मोक के तदारक के लिए सेमिनार मुनक्किद करने की हिदायत। दूसरी जानिब रोडा ने भी एंटी स्मोक मुहिम शुरू कर दी। राव इंडस्ट्रियल एरिया में एंटी स्मोक ऑपरेशन किया गया। धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों और बोन क्रैशर को सील कर दिया गया। कमिश्नर ऑफिस लाहौर में भी इंसदाद स्मोक सेल कायम किया गया है। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है शहरी लाहौर को स्मोक फ्री बनाने के लिए किरदार अदा करें। यहाँ पर आपको बताएं, ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर। मुर्गी का गोश्त 8 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 474 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर होलसेल 305, परचून रेट 317 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 1 रुपया महंगे, फी दर्जन कीमत 329 रुपये हो गई। अंडों की पेटी 9,750 रुपये में फरोख्त। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा इस बारे। जो है ब्रायलर की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। ब्रायलर की कीमतें जो है गुज़िश्ता जो है वो एक हफ्ते से जो है उसमें अदम इस्तेहकाम जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो ब्रायलर की कीमतें हैं आज 8 रुपए बढ़ा दी गई हैं। 468 रुपए फी किलो से ब्रायलर गोश्त की कीमत बढ़ाकर 476 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत में 5 रुपए का इजाफा किया गया, जिससे होलसेल जिंदा ब्रायलर 305 और परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 317 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। अंडों की कीमतों में होने वाला इजाफा जो है वो मुसलसल जारी है और आज भी जो सरकारी रेनिंग जारी किए गए हैं उसमें अंडों की कीमतों में मजीद 1 रुपए का इजाफा किया गया। 328 से कीमत बढ़ाकर 329 रुपए फी दर्जन मुकर्रर की गई है और होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,750 रुपए की मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में जो अंडे हैं वो 340 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि मौसम में तब्दीली के बायस अंडों की जो है इस्तेमाल बढ़ जाता है, लेकिन की सप्लाई बेहतर होने की वजह से कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और इंतजामिया सिर्फ सरकारी पूरी कर रही है, लेकिन अंडों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से लोगों को महंगे अंडे खरीदना पड़ रहा है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। बात करते हैं अवामी मसाइल की, तो आपको बताएं सर्दी अभी पूरी तरह नहीं आई कि चूल्हों से गैस गायब होना शुरू हो गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह, दोपहर और रात के औकात में भी गैस बंद। महंगाई के इस दौर में शहरी ईंधन के मुतबादिल ज़राए पर खर्चा करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं फहद अमीन। गैस की कीमतों में होश रबा इजाफा, लेकिन चूल्हों से गैस गायब। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह, दोपहर और रात के औकात में भी गैस बंद। नाश्ता तैयार किया जा सकता है और ना ही खाना। गैस सारिफीन की मुश्किलात बढ़ने लगी। गड़ी शाह, सनत नगर, समनाबाद, इचरा, मजंग, चौबुर्जी समेत बेशतर इलाकों में लो प्रेशर की शिकायत। गुजरपुरा के इलाके में सूरत हाल और भी खराब है। गैस का प्रेशर इंतहाई कम है, जिसकी वजह से रिहायशी महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर है। मकीनों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में ईंधन के मुतबादिल ज़राए पर खर्चा हो रहा है। हमारी गैस नहीं आ रही, बड़ी तंगी है। सारा दिन माचिस की तीलियां जला जला कर थक जाते, गैस नहीं आती। सिलेंडर भरवा के ला रहे हैं और गैस का इतना बिल आता है बेशुमार, और गैस आती भी नहीं है। ये लकड़ी जला रहे हैं, बच्चे ने स्कूल जाने लेट हो रहे हैं, खाना नहीं पका। ये पकौड़े लेके आए हुए, ये खा के जाएगा, रोटी नहीं है। और लकड़ी इतना बाहर से मुश्किल से मिलती है। बच्चे इसी तरह सुबह के टाइम पे भी मेरी बेटी इसी तरह नाश्ते के बगैर जाती है। लकड़ी हम लोग खरीद नहीं सकते, किराए हैं, बिल है, पानी का बिल है। बिल वाले नहीं देखते यहाँ पे आ रही गैस या नहीं, वो तो भेजते हैं हमको। शहरियों का कहना है कि महकमे वाले ढेरों बिल भेज रहे हैं, लेकिन गैस की सहूलत देने से कासिर हैं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। सब्जियों और फलों की मनमाने रेट पर फरोख्त जारी। अदरक 870, लहसुन 650, प्याज 160
60, टमाटर 150 रुपए किलो फरोख्त, मटर 500, मेथी 180, आलू 120 रुपए किलो बिकने लगे। अनार बदाना 900, अंगूर 500, सेब 340 रुपए फी किलो तक फरोख्त हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो सरकारी रिलीज जारी किया गया उसमें 4 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जबकि रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियां भी सरकारी नकनामों के बरक्स महंगे दामों शहरियों को फरोख्त की जा रही है। प्याज 115 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में प्याज 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर 116 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन फरोख्त 150 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। लहसुन 505 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन 650 रुपए फी किलो तक लहसुन की फरोख्त की जा रही है। अदरक 580 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में अदरक 870 से जो है वो 800 रुपए फी किलो के दरमियान फरोख्त किया जा रहा है। अदरक के मियार के मुताबिक उसकी कीमत शहरियों से वसूल की जा रही है। सब्ज मिर्च की कीमत में 7 रुपए का इजाफा किया गया, 85 रुपए मुकर्रर की गई है सरकारी रेंज में, लेकिन मार्केट में 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। लीमू 10 रुपए इजाफे के बाद 70 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन फरोख्त 90 रुपए फी किलो तक। इसी तरह बैगन 2 रुपए महंगे करके 42 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 80 रुपए फी किलो तक बैगन की फरोख्त की जा रही है। शलजम 5 रुपए इजाफे के बाद 85 रुपए सरकारी रेल में, मार्केट में 130 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। फलों में सेब काला कोल्हू 230 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 340 से 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 115 के बरस 160 रुपए फी दर्जन और दर्जा 2 का केला 95 के बरस 130 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। अनार बताना 520 के बरस 900 रुपए और इसी तरह जापानी फल 145 के बरस 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी नजरनामों के इजरा के बावजूद मार्केट में मनमानी कीमतों पर फरोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों को जो है महंगाई का सामना है। शहरियों का कहना है कि सरकारी रिलीज रोजाना जारी किए जाते हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका इस बारे में तफसीलन आगाह करने के लिए। डेंगू की सूरत हाल के बारे में आपको आगाह करें। डेंगू बुखार का जोर बरकरार, लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू मच्छर के वार जारी। लाहौर में मजीद 124 अफराद बीमार हो गए। तफसीलात मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट में। मौसम बदल गया, डेंगू मच्छर के तेवर न बदले। डेंगू बुखार का जोर बरकरार, लाहौर में 24 घंटे के दौरान मजीद 124 अफराद बीमार। सूबे भर में 214 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई। रावलपिंडी 25, गुजरांवाला 24, मुल्तान 16, फैसलाबाद में 4 मरीज रिपोर्ट। शेखुपुरा, चकवाल और सियालकोट में डेंगू के 2 नए मरीज सामने आए। रवां साल लाहौर में डेंगू के 4032 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब के 36 अजला में डेंगू के 9512 मरीजों में तस्दीक हुई। जिला लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 59 मरीज जेर इलाज हैं। डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें। डेंगू की रोकथाम के लिए महकमा सेहत की टीमों से ताउन किया जाए। कैमरामैन जिशान के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने अवेस्टन इंजेक्शन के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। महकमे सेहत ने अवेस्टन इंजेक्शन के इस्तेमाल के हवाले से SOPs पंजाब हुकूमत को भिजवा दिए। SOPs के मुताबिक अवेस्टन इंजेक्शन आंखों के इलाज के लिए इस्तेमाल हो सकेगा। अवेस्टन इंजेक्शन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई थी और रिपोर्ट जारी कर दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने अवेस्टन मेडिसिन रिकॉल अलर्ट्स मंसूख कर दिए। पंजाब क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड हाई पावर कमेटी ने अवेस्टन के 4 बैचेस रिलीज करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान में अवेस्टन इंजेक्शन बड़ी आंत के कैंसर के इलाज के लिए रजिस्टर्ड है। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है, अवेस्टन इंजेक्शन कैंसर समेत आंखों की मोहलक बीमारियों के लिए एक बेहतरीन दवाई है। आंखों में इस्तेमाल के लिए SOPs बनाकर पंजाब हुकूमत को भिजवा दिए गए हैं। लेस्को अफसरान की मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने का मामला। लेस्को इंजीनियर्स एसोसिएशन का लेस्को हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। तफसीलात फहद अमीन की रिपोर्ट में। निगरान हुकूमत की तरफ से लेस्को अफसरान की मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने का फैसला। लेस्को इंजीनियर्स एसोसी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन ने लेस्को हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज किया। एहतजाज में लेस्को, NTDC, वापडा के इंजीनियर्स और लेस्को मुलाजमीन की बड़ी तादाद में शरीक। मुजाहिरीन ने विफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इंजीनियर्स का कहना था कि मुफ्त बिजली की सहूलत हमारे कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है। ये सहूलत खत्म करना निगरान हुकूमत के इख्तियार में नहीं। लेस्को अफसरान और मुलाजमीन 24-24 घंटे काम करते हैं। हुकूमत इन्हें रिलीफ देने के बजाय उनकी बुनियादी सहूलत खत्म करने के दर पे है। जो गर्मी और सर्दी में इन हालात के अंदर भी ये बिजली की कंटिन्यूटी को, सप्लाई को बहाल करते हैं और लोगों को तक ये मुहैया करते हैं। और इस तरह के लोग अगर रोड पे आ रहे हैं
तो कोई ना कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से रोड पे आ रहे हैं। फ्री सप्लाई के जो यूनिट्स हैं उनको ख़त्म करने की बात हो रही है, उनकी मोनेटाइजेशन की बात हो रही है। असल इशू ये है कि ये फ्री सप्लाई तो है ही नहीं है, ये हमारे सर्विस का हिस्सा है। मुजाहिरीन का कहना था कि ऐसा कोई फैसला काबिल अमल है, न ही हम उसे कबूल करेंगे। इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें और आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की हिदायत पर पार्टी की जनरल कौंसिल का इजलास हफ्ता 4 नवंबर को होगा। पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने जनरल कौंसिल के इजलास के लिए हिदायत जारी कर दी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी सरगर्मियां भी शुरू कर दी। कौमी और सूबाई हलकों के उम्मीदवारों के लिए फॉर्म जारी कर दिए। हसन रजा की रिपोर्ट। नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल का पहला इजलास हफ्ता 4 नवंबर को रायगढ़ में तलब। कायद नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में पार्टी सदर शहबाज शरीफ और दीगर मरकजी कायदीन शिरकत करेंगे। इजलास को फलस्तीनियों के साथ यकजहती के तौर पर मुनाकिद करने के लिए सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को हिदायत जारी कर दी गयी। नून लीग ने पार्टी इलेक्शन सेल और पार्लिमानी बोर्ड भी तश्कील दे दिए। आम इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों से दरखास्तों की वसूली का आगाज हो गया। दरखास्तें 10 नवम्बर तक जमा करवाई जा सकती हैं। लाहौर न्यूज ने पार्टी उम्मीदवारों के लिए फॉर्म की कापी हासिल कर ली है। सूबाई असम्बली के लिए 1 लाख रुपए और कौमी असम्बली के लिए 2 लाख रुपए फीस मुख्तस की गई। कौमी और सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्त के लिए भी 1 लाख रुपए देना पड़ेंगे। पार्टी मंशूर की तैयारी के लिए सेनेटर इरफान सदीकी की सरबराही में कमेटी कायम। दीगर अराकीन का ऐलान इजलास के बाद किया जाएगा। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के गुज़िश्ता रोज़ होने वाले आला सतह के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में फैसला किया गया कि पार्टी अपनी माजी की कारकर्दगी को इंतखाबी बयानिया बनाएगी। साबिक अदवार में बनाए जाने वाले मंसूबों की बुनियाद पर मैदान में उतरा जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रजा। मुस्लिम लीग नून के गुज़श्ता रोज होने वाले आला सतह के इजलास की अंदरूनी कहानी, पार्टी का अपनी माजी की कारकर्दगी को इंतखाबी बयानिया बनाने का फैसला। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के साबिक अदवार में बनाए मंसूबों की बुनियाद पर इंतखाबी मैदान में उतरेगी। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून का नया इंतखाबी मंशूर तैयार करवाया जाएगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक मंशूर के ऐलान के बाद पार्लिमानी बोर्ड बनाकर टिकटें तकसीम की जाएंगी। नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के दौरान जलसों से खिताब करेंगे। लीगी क़यादत का 9 मई के वाक़यात में मुलविस किरदारों के साथ किसी किस्म की सियासी मुफाहमत से मुकम्मल गुरेज का मुत्तफिक का फैसला। इजलास में साबिक नवाज अदवार के तरक्याती मंसूबों के जिक्र पर नवाज शरीफ के शिकवे। कायद मुस्लिम लीग नून का कहना था कि मुल्क की तरक्की के तमाम अशारियों के बावजूद हमें काम करने का मौका नहीं दिया गया। पहले गुलाम इसहाक फिर मुशर्रफ ने काम नहीं करने दिया। तीसरी बारी के दौरान धरने करवाए गए। अदालती कंधा इस्तेमाल करके मुझे जबरदस्ती निकाला गया। 1993 में मुझे सदर, 1999 में आर्मी चीफ और 2017 में चीफ जस्टिस ने निकाला। अगर हमें काम करने दिया जाता तो आज पाकिस्तान दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में शुमार होता। नवाज शरीफ ने इस अज़म का इजहार किया कि अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी और सियासी बहरान से निकालेंगे। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राना फारूक सईद का कहना है कि किसी पार्टी को बाहर किया गया तो दुनिया इलेक्शन की साख को तस्लीम नहीं करेगी। ज़ाती पसंद नापसंद मत करें, सबको इलेक्शन लड़ने दें। रियासत बचानी है तो शिफाफ इलेक्शन कराएं। देखते हैं मोहम्मद यासीन की ये रिपोर्ट। कायम मुकाम सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब राना फारूक सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहने लगे, नून लीग की सोच है कि पीटीआई को इलेक्शन से निकाल दिया जाए। किसी पार्टी को इलेक्शन से बाहर किया गया तो दुनिया इंतखाबात की साख को तस्लीम नहीं करेगी। जाती पसंद नापसंद मत करें, सबको इलेक्शन लड़ने दिया जाए। रियासत बचानी है तो शफाफ इंतखाबात कराए जाए। 9 मई के वाकयात में देखा देखी आने वालों को माफ कर दिया जाए। अगर किसी पार्टी पे पाबंदी लगाई आपने और उसको इलेक्शन से बाहर किया तो दुनिया आपका इलेक्शन नहीं मानेगी। 9 मई वाक़ये में जो मुलव्वस है आप उसको सजा दे सकते हैं। वो माफ़ी नहीं मांगते इस चीज़ की कि हमने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है, हमें कौन माफ़ कर दे। राना फारूक सईद ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ समेत दीगर जमातों से एंटी नून लीग इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है। नून लीग की जब तक डील न हो ये इलेक्शन नहीं लड़ सकती। मुखालिफिन इंतखाबी इत्तेहाद बना रहे हैं, इनका सामना करने को तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब में होने वाले तरक्याती कामों का जायजा लें। ड्राइविंग सीट वाले का माइंड सेट नहीं बदला, आम आदमी परेशान है। जो एंटी मुस्लिम लीग नून आएंगे सबके साथ हो सकता है, जिनका नजरियात जो हैं उनके खिलाफ है, जो नजरियाती लोग हैं। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये कहता हूँ कि वो इस पे तवज्जो दें
और ये सारे काम जो हो रहे हैं पंजाब में, जिसमें सुई गैस के काम भी हैं, ड्राइविंग सीट पे जो बंदा बैठा था उसका जो ज़हन था उस ज़हन से वो निकला नहीं। राना फरूख सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहजाद सईद, चीमा अहमद, जवाद राना, तस्नीम कुरैशी, डॉक्टर खयाम हफीज, नुमान चौधरी, शाहिदा जबीन और दीगर भी मौजूद थे। आपको बताएं, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है फ़लस्तीन के मामले पर मुल्क की बड़ी जमातों ने पुरस्रार खामोशी इख्तियार कर रखी है। मुल्क अखलाकी, सियासी और माशी ज़वाल का शिकार है। हमने गजा कॉन्फ्रेंस में हुकूमत को मद्दू किया, पैगाम मिला कि हम निगरान हैं। राहिल अली की रिपोर्ट। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा लाहौर में यूट्यूबर से मुलाकात और मीडिया से गुफ्तगू। सिराजुल हक का कहना था पहले मुकाबला सच और झूठ में होता था, अब मुकाबला ज्यादा और कम झूठ का है। हकीकी लीडर सदर या वजीर आज़म नहीं, वो होता है जो लोगों के दिलों में रहे। यानी हकीकी लीडर वो नहीं है जो सदर होता है या वजीर आज़म होता है। हकीकी लीडर वही होता है जो लोगों की रहनुमाई करता है, जिनकी वजह से लोग अपने अंदर कोई मुस्बत तब्दीली के लिए अज़म करे। आपने बारहा देखा होगा कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हुक्मरान नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो लोगों के दिलों में रहते हैं। सिराजुल हक का कहना था कि फ़लस्तीन के मामले पर मुसलमान हुक्मरानों ने बुज़दिली दिखाई है। हमने गजा कॉन्फ्रेंस में हुकूमत को मदऊ किया, मगर कहा गया कि हम तो निगरान हुकूमत हैं। उनको सियासी ताउन की भी ज़रूरत है, उनको अस्करी ताउन की भी ज़रूरत है। तो इस सियासी और अस्करी ताउन के लिए हम चाहते हैं कि हम मुसलमान हुक्मरानों को बेदार कर ले। आपके वज़ीर आज़म को क्या हो गया है, आपके सदर को क्या हो गया है, आपकी हुकूमत को क्या हो गया है। मैंने कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में हुकूमत को दावत दी, उन्होंने कहा कि हम तो निगरान हुकूमत है, हम तो इस तरह मसाइल में मुदाखलत ही नहीं करते हैं। सिराजुल हक का कहना था मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कौम को यरगमाल बना रखा है। इनकी हुक्मरानी दौलत के बलबूते पर है। करप्शन फ्री पाकिस्तान सिर्फ करप्शन फ्री जमात ही बना सकती है। कैमरामैन मुबीन के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान कहते हैं कि दुनिया के तमाम इंसान एक दूसरे के साथ इंसानियत के रिश्ते में जुड़े हुए हैं। दुनिया भर के ममालिक आगे बढ़कर गजा में मासूम शहरियों, औरतों और बच्चों के कत्लेआम को रोकने में किरदार अदा करें। तामीर प्रोजेक्ट का मकसद यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात को हुनरमंद बनाना है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की निजी यूनिवर्सिटी में ताबीर प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब में गवर्नर पंजाब ने कहा कि यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर बेहतरीन इकदाम है। इंक्यूबेशन सेंटर का मकसद नौजवानों को नए कारोबार के लिए जरूरी वसाइल, रहनुमाई और मौके फराहम करना है। मुल्क की माशी तरक्की के लिए कारोबार के लिए मौजू माहौल पैदा करना बहुत जरूरी है। नौजवानों में छोटे कारोबार की हौसला अफजाई से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। It's really amazing to see the role the incubation center is playing in creating new businesses, in sharpening the ideas, in putting it to a reality, whatever the dreams are. And as Namansa was saying, it is a tabir, it is a reality of a dream which comes true. And this environment which incubation center creates, when all the people are sitting together, इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा कि गजा में शहरी आबादी अस्पतालों पर बमबारी के नतीजे में फलस्तीनियों की शहादतें तकलीफ दे हैं। Palestine is painful to see. The civilians were not in war. And it must go for any other country as well. Civilians, no matter where they are, they must be protected. They must not be attacked. But one wrong doesn't give an excuse for two wrongs don't make a right. And if someone kills a civilian, doesn't mean that all the civilians. तकरीब में अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन एंड्रियो शोफर, अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर क्रिस्टन हॉकिंस, वाइस चांसलर लम्स डॉक्टर तारिक जदौन और डायरेक्टर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर नुमान जफर ने भी शिरकत की। खबर दें आपको, निगरान वज़ीर आला पंजाब का शादरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा। लाहौर से गुजरांवाला साइट पर नो तामीर शुदा ओवरहेड ब्रिज का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंसूबे के फिनिशिंग के कामों का मुआयना किया और मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। तो आपको आगाह कर रहे हैं, निगरान वज़ीर आला पंजाब का शादरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा। लाहौर से गुजरांवाला साइट पर नो तामीर शुदा ओवरहेड ब्रिज का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंसूबे के फिनिशिंग के कामों का मुआयना किया और मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का शादरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा। लाहौर से गुजरांवाला साइट पर नो तामीर शुदा ओवरहेड ब्रिज का जायजा लिया गया है।